My dear students, get ready for practice session because I'm making you practice and you guys have to speak with me, you have to repeat with me and you have to practice with me. In case you are not able to speak, you are unable to translate all these sentences that I'm asking you. So please repeat after me but speak. If you think that I will learn English, that I will learn how to speak English without practicing, so you are wrong, dear student. Without practicing, without making sentences, without giving your time, without making sentences, you will not be able to speak English, dear student. Understand this concept. Try to understand it. There are so many students, they often ask me, sir, how we can be fluent English, how we can become fluent English speaker, how we can become confident in English. So I say only one thing to them. Do practice every day, do practice on the daily basis and see the change, see the improvement. You are not giving your 100%, you are not practicing. You have learned all grammar rules, you have learned tenses, you have learned parts of speech. You know how to translate any sentence, and you when it comes to speak anything, when it comes to speak randomly, when it comes to speak situationally, when it comes to speak accordingly, you get stuck while speaking. Why is it, student? Why is it so? Because you are not practicing regularly. If you practice regularly, if you practice on the daily basis, see the change. You will be talking, you will be speaking English like a native speaker, like anyone. You can communicate. So you need to practice on the daily basis. You need to set a timetable. You need to set a routine for you, that when I can practice, at what time I can practice. So by setting all this, by having all this, you will do practice accordingly. And within 30 days, dear student, you will see the change in your personality. You will see that now I am being able to talk to anyone, to communicate to anyone. So student, without any further delay, let's get started. Are you with me? Will you speak with me? Will you talk to me? Will you communicate with me? सो स्टूडेंट, मैं आपको अभी सेंटेंसेस लिखा रहा हूं, मैं सेंटेंस बोलूंगा उर्दू में और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, ठीक है ना? और लेट मी टेल यू अगेन, if you are speaking and if you are speaking wrong English, for example, you try to speak but you speak wrong English, so do not never ever think about your mistake. Right now, if I'm making any mistake while speaking, so it doesn't mean I will stop speaking English. No, I will not stop speaking English, because speaking improves your speaking style. Speaking comes with speaking. याद रखिए, बोलना बोलने से ही आता। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कब आपको आएगा? बोले मेरे साथ, speak with me, try to make sentences, try to speak all those situational sentences that is used generally. Student, मैंने कहा बोलो जैसा आप बोल सकते हो, स्पीक एज यू कैन, एज यू, पढ़ाओ जैसा आप पढ़ा सकते हो, स्पीक एज यू कैन। देखिए यहां पर मैंने स्पीक लगाया तो फिर दोबारा वर्ब लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप इस तरह भी कहते हो, स्पीक एज यू कैन स्पीक, जाओ जहां आप जाना चाहते हो, गो वेयर यू वांट टू गो, या गो वेयर यू वांट टू, बस ये भी योर यू वांट, ये भी सही है। जाओ जहां आप जाना चाहते हो, गो where you want to go, to go। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, I will not go with you, I will not go with you। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं करूंगा, I will not improve my English। मैं आपकी वीडियो नहीं देखूंगा, I will not watch your video। आप किसके साथ बैठे हुए हो, आप किसके साथ बैठे हुए हो, with whom, with whom, with whom की इंग्लिश इज टू, with whom, किसके साथ, with whom, किसके साथ, with whom are you sitting, are you, with whom are you sitting, आप कहां जा रहे हो,
वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप अपने आप को क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे हो, वाई आर यू नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, वाई आर यू नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, वाई आर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियो। जाओ जहां आप जाना चाहते हो, गो वेयर यू वांट टू गो, करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन। मैं उतना पानी नहीं पी सकता जितना आप पी सकते हो, आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक as much water as you can। देखिए यहां पर अगर आप आई कैन नॉट ड्रिंक सो मच वाटर, सो भी लगाए तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। सर मुझे लगता है कि स्पीकिंग जो है ना वो राइटिंग से मुश्किल है। सर आई थिंक स्पीकिंग is difficult than writing, speaking is more difficult than writing। Sir I think speaking is more difficult than writing। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्पीकिंग राइटिंग से डिफिकल्ट है, वाई डू यू थिंक सो स्पीकिंग इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग, वाई डू यू थिंक सो स्पीकिंग इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग। क्योंकि स्पीकिंग मैं समझता हूं कि मुश्किल काम है, बिकॉज आई थिंक स्पीकिंग इज ए टफ जॉब, स्पीकिंग इज ए टफ जॉब, स्पीकिंग इज ए डिफिकल्ट टास्क, स्पीकिंग इज ए डिफिकल्ट टास्क। बोलो जितना आप बोल सकते हो, स्पीक एज मच एज यू कैन, स्पीक एज मच एज यू कैन, स्पीक। अब ये रूल आपको पता नहीं है कि यहां पर कौन सा रूल लगा रहे हैं, ये एज मच क्या होता है, आप सिर्फ बोलो। मैंने वैसे भी टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की होगी, जिसको इंग्लिश ग्रामेटिकली और अच्छे मैनर में, एक गुड मैनर में सीखना है तो वो मेरे वीडियोस को मतलब अच्छे से देख सकता है, और वो देखेंगे कि इस तरह इंशाल्लाह किस तरह हम उनको एक अच्छे कम्युनिकेटर बनाते हैं, एक अच्छे स्पीकर बनाते हैं, ठीक है ना। स्पीक एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। पढ़ाओ जितना आप पढ़ा सकते हो, टीच एज मच एज यू कैन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इंप्रूव करोगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इंप्रूव, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इंप्रूव। मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो, आई विल नॉट गो वेयर यू आर गोइंग, आई विल नॉट गो वेयर यू आर गोइंग। मैं उतना नहीं बोलूंगा जितना आप बोलोगे, आई विल नॉट स्पीक एज मच एज यू आर स्पीकिंग, आई विल नॉट स्पीक एज मच एज यू आर स्पीकिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, वाई आर यू टीजिंग मी। मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा, आई विल कंप्लेन अबाउट यू, आई विल कंप्लेन अबाउट यू, आई विल कॉफ अबाउट यू। कॉफ भी एक वर्ब है, CARP, जिसका मतलब होता है शिकायत करना। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं आपके साथ बैठूंगा, आई विल सिट बिसाइड यू, आई विल सिट विद यू, आई विल सिट विद यू। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम यूजिंग कंप्यूटर। आप क्यों कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, आपको स्टडी करनी चाहिए। व्हाई आर यू यूजिंग कंप्यूटर, यू शुड स्टडी। आपको मुझे देखना चाहिए, यू शुड लुक एट मी, आपको वहां देखना चाहिए, यू शुड लुक एट देयर। जाओ जहां आप जाना चाहते हो, गो वेयर यू वांट टू गो। मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। मैं इंग्लिश हाउस अकेडमी आना चाहता हूं, आई वांट टू कम टू इंग्लिश हाउस अकेडमी। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं, आई वांट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मैं कुछ करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग माई लाइफ। सर आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की। सर आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो आई हैव इंप्रूव माई इंग्लिश। देखिए अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना डेली बेसिस पे, तो आप जरूर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करोगे। सी इफ यू वॉच माई वीडियो, इफ यू विल वॉच माई वीडियो ऑन द डेली बेसिस, यू विल श्योरली इंप्रूव योर इंग्लिश। सर मैं इंप्रूव कर रहा हूं, सर आई एम इंप्रूविंग, सर मैं इंप्रूव कर रहा था, सर आई वाज इंप्रूविंग, सर आई वाज इंप्रूविंग, सर मैं वहां जा रहा था, सर आई वाज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, आई वाज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग देयर,
मैं वहां जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर। मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। मैं वहां जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन देयर। मैं 2 दिनों से वहां जा रहा हूंगा, आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। मैं वो 2 दिनों से वहां जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से वहां जा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। स्टूडेंट इसी तरह प्रैक्टिस करें, इसी तरह सारे टेंसेस को एक वक्त में बोले। एक सेंटेंस को आप 12 टेंसेस में बोले, जब मैंने कहा। देखिए, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर, मैं लिखता हूं। आई राइट, मैंने लिखा। आई रोट, मैं लिखूंगा। आई विल राइट, मैं लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख चुका हूं। मैं लिख रहा हूंगा। आई विल बी राइटिंग, मैं लिख चुका हूं। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका था। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका हूंगा। आई विल हैव रिटन, मैं 2 दिनों से लिख रहा हूं या मैं सुबह से लिख रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूंगा। आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं आपको देख रहा हूं। आई एम लुकिंग एट यू, मैं उसको देख रहा था। आई वॉज लुकिंग एट हर या आई वॉज लुकिंग एट हिम। आई वॉज लुकिंग एट हिम, मैं पानी पी रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं वहां जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर, मैं यहां आ रहा था। आई वॉज कमिंग हियर, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा था। आई वॉज इंप्रूविंग माई सेल्फ, मेरी तरह बोलो। स्पीक लाइक हिम, उसकी तरह बोलो। स्पीक लाइक हिम, स्पीक लाइक, मेरी तरह बोलो। स्पीक लाइक मी, सॉरी, स्पीक लाइक मी, उसकी तरह बोलो। स्पीक लाइक हिम, अगर लड़की, स्पीक लाइक हर, मेरी तरह सुनो। स्पीक, लिसन लाइक मी, हियर लाइक मी, हियर लाइक मी, लिसन लाइक मी, उसकी तरह सुनो। हियर लाइक हिम, हियर लाइक हर, मेरी तरह चलो। वॉक लाइक मी, मेरी तरह बोलो। वॉक, स्पीक लाइक मी, मेरी तरह सुनो। हियर लाइक मी, मेरी तरह दौड़ो। लर्न लाइक मी, मेरी तरह रन लाइक मी, मेरी तरह सीखो। लर्न लाइक मी, सर मैं आपकी तरह नहीं सीख सकता। सर आई कैन नॉट लर्न लाइक यू, सर मैं आपकी तरह नहीं दौड़ सकता। सर आई कैन नॉट रन लाइक यू, सर मैं आपकी तरह नहीं पढ़ा सकता। सर आई कैन नॉट टीच लाइक यू, आप मेरी तरह पढ़ा सकते हो। यू कैन टीच लाइक मी, अगर आप प्रैक्टिस करो। इफ यू प्रैक्टिस, आप मेरी तरह बोल सकते हो। यू कैन स्पीक लाइक मी, अगर आप प्रैक्टिस करो। इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू डू प्रैक्टिस। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा हूं, आई एम नॉट लिसनिंग। मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग देयर? मुझे एक बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। आई हैव टू अटेंड ए बर्थडे पार्टी, दैट्स व्हाई आई गोइंग देयर, इसी वजह से मैं वहां जा रहा हूं। मैं अपने दोस्त अली से मिलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स अली, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड नेम्ड अली, जिसका नाम है अली। नेम्ड, NAMED, नेम्ड अली। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड नेम्ड अली। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड जिसका नाम है नेम्ड अली। अली कौन है? वो अली, अली मेरा दोस्त है। अली इज माई ब्रदर, अली इज माई फ्रेंड। नहीं नहीं, वो मेरा भाई है। नो, ही इज माई ब्रदर। नो, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा सगा भाई है। ही इज माई रियल ब्रदर। वो मेरा स्टेप ब्रदर, ही इज माई स्टेप ब्रदर। सो तेरा स्टेप ब्रदर को कहते हैं। अब आप इस तरह भी कहते हो, वो मेरा सगा, ही इज माई बायोलॉजिकल ब्रदर, ही इज माई बायोलॉजिकल ब्रदर। आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं जा रहा हूँ इंग्लिश हाउस अकेडमी। आई एम गोइंग टू इंग्लिश हाउस अकेडमी, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। टू इंप्रूव माई इंग्लिश, वहां पर हारून सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हारून सर टीच वेरी वेल डियर। हारून सर वहां पर बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं। हारून सर टीच इंग्लिश वेरी वेल डियर। सो मैं इंग्लिश हाउस अकेडमी में जरूर एडमिशन लूंगा। सो आई विल डेफिनेटली टेक एडमिशन इन इंग्लिश हाउस अकेडमी। सो आई विल डेफिनेटली टेक इंग्लिश एडमिशन इन इंग्लिश हाउस अकेडमी। अगर आप इंग्लिश हाउस अकेडमी के हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश हाउस अकेडमी के में दाखिला लेना चाहते हो, यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ इंग्लिश हाउस अकेडमी, तो आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू कम रेगुलरली। So you will have to come regularly. So students, ये थी हमारी प्रैक्टिस सेशन और मुझे यकीन है आपने you enjoyed it very much, you learned a lot through this practice session. तो इसी तरह के वीडियो के लिए अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सीखेंगे कि किस तरह हम आपको बढ़िया तरीके से इनोवेटिव वे में एक नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करा के आपका जो ड्रीम था ना इंग्लिश सीखना,
हम वो पूरा करेंगे. सो स्टूडेंट, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.